Bismillahirrahmanirrahim. The topic of this Zoom class is inclination and slope of a line. स्लोप से पहले हम इंक्लाइनेशन को डिस्कस करते हैं कि इंक्लाइनेशन किसी लाइन का क्या होगा और इंक्लाइनेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे. Now, inclination you see in the in the given figures, the line L makes an angle theta with the x-axis, and this theta is in the anti-clockwise direction. तो anti-clockwise direction हमारे पास consider होता है positive. Now this point P lying on the line. Now this line is actually in two-dimensional plane, so therefore the point coordinates must be in the form of ordered pair x1 y1. This point has x1 unit distance on the x-axis and y1 unit distance on the y-axis. Or in other words, you can say that this point is x1 unit away from the y-axis and y1 unit away from the x-axis. So in both these figures, you see that both the lines intersect the x-axis at point A. So this is the x-intercept. And having a point P1 on the line, and theta is the positive angle mean in anti-clockwise direction line makes with the x-axis. So then this theta is called the inclination. The theta which is in anti-clockwise direction, the line makes with positive x-axis. So the angle XAP1, this angle XAP1 are in this figure, this is XAP1. So these angles are called inclination. So now this detail is written in the slide. Let L be any line in the coordinate plane which is not parallel to the x-axis. Then that line L has point P1 x1 y1 is the coordinate. Be any point on the line L with y1 greater than 0. Now this inclination which is theta can be measured in 2 units. आप सबको पता है 8 9 10 से कि हमारे पास एंगल क्या होता है. एंगल आपके पास असल में इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जो डिस्टेंस होता है. सो नाउ इन दिस केस this theta is the standard angle that you learn in the previous class, कि वो एंगल जिसका इनिशियल रे एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड एंगल. सो दिस थीटा इज द स्टैंडर्ड एंगल. और यहाँ पे आपका ये थीटा जो है ये हमारे पास मेजर होगा डिग्री में या रेडियन में. दिस इज द मेजर, दिस इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट, डिग्री एंड यूनिट. एंड डिग्री एंड यूनिट रेडियन इज द स्टैंडर्ड. ये आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है. तो इसको हम कहेंगे ये थीटा जो कहलाता है आसान अल्फाज में जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन. अब y एक्सिस या एक लाइन जो पैरेलल हो y एक्सिस को आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. आप ये देख लें. नाउ इन दिस डायग्राम you clearly see that the y axis are a line which is parallel to the y axis. Both has angle 90 degree with the x axis. So in this case the inclination is 5/2 radian or 90 degree. Okay. In case of the x-axis, now if a line is parallel to x-axis, or you can take the x-axis, so in that case inclination will be 0 degree. Now you see inclination of the x-axis or any line parallel to the x-axis is considered to be 0 degree or 0 radian. Okay. इसके बाद स्लोप की हमने डिफिनीशन करनी है. स्लोप हमारे पास होता है राइज बाय रन. राइज मीन द डिस्टेंस दैट यू कवर्ड वर्टिकली, और रन हमारे पास होता है द डिस्टेंस दैट यू कवर्ड हॉरिजॉन्टली. तो अब अगर आपके पास इंक्लाइनेशन है, थीटा इज योर इंक्लाइनेशन दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड. सो इफ वी टेक द टेंजेंट ऑफ द थीटा, theta is the inclination, and when you take tangent of that inclination, so that is called slope or gradient. Slope is also known as gradient.
तो आसान अल्फाज में अगर थीटा आपके पास इंक्लाइनेशन गिवन हो, ये आपके पास थीटा, ये इंक्लाइनेशन कहलाता है। अगर इंक्लाइनेशन गिवन है, थीटा गिवन है, जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, तो उस थीटा का आप टेंजेंट ले लें, एंड दैट इज कॉल्ड gradient or slope. Usually slope is denoted by m, so that's why we write m equal to tangent theta is the slope of the line L as shown in this figure. तो इस फिगर से मैं अब स्लोप का फार्मूला डिराइव करता हूं। अगर आप इस फिगर को गौर से देख लें, नाउ इन दिस फिगर 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन। ये आपके पास एक लाइन L है, इनके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A और पॉइंट B। ये देखिए, दिस इज पॉइंट A, this is point A, and this is point B. So these 2 points are given. Now we are interested to find out the slope formula for a line. These 2 points are the journal points on the line, and these points has ordered phase for their representation because these points are the plane points. अगर plane के अंदर है तो इनकी representation, इनकी position को specify करने के लिए we have ordered phase. The distance along x-axis the point A is x1, and the distance along y-axis of the point A is y1. And similarly, the distance of the point B on the x-axis is x2, and respectively on the y-axis the distance of the point B is y2. Now this is x2 minus x1। आप देख ले, एक्स एक्सिस पे आप x1 से x2 पे गए हैं ना, अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, तो ये आपका होगा x2 माइनस x1। और ये जो आपके पास है ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो आपके पास y एक्सिस पे चेंज आए हैं, दैट इज y2 माइनस y1। नाउ दिस इज थीटा। ये थीटा और ये थीटा आपके पास सेम होंगे, ये थीटा और ये थीटा आपके पास सेम होंगे, बिकॉज दिस इज theta with the x-axis in anti-clockwise direction, and this is also a theta with the x-axis। यहाँ पे आप देख ले, ये आपका x एक्सिस कंसिडर होगा, ये जो आपके पास x2 माइनस x1 का लाइन आप एक्सटेंड कर लें। तो इफ यू टेक द टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल that y2 minus y1 is the perpendicular and x2 minus x1 is the base, so tangent theta will be perpendicular divided by base. So from that we get that tangent theta is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So actually y2 minus y1 is your rise, change on the vertical line, or x2 minus x1 is run, change on the horizontal line. So rise by run को हम कहते हैं slope। तो आपका टेंजेंट थीटा बराबर हो गया y2 minus y1 divided by x2 minus x1, और इसको हम m से डिनोट करते हैं, जिसे हम स्लोप कहते हैं। तो इस फार्मूले को गौर से देख लें, ये जो आपके पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, if the inclination is given, then you will use tangent theta for finding the slope of that line. Now अगर इंक्लाइनेशन नहीं गिवन, थीटा आपको नहीं गिवन, देन आपने फार्मूला यूज करना है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। लेकिन आपने अगर ये फार्मूला यूज करना है तो इनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आप जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहते हैं उसी लाइन के ऊपर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसका आप स्लोप आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, मैं फिर इसको जूम करता हूँ कि ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 का जो फार्मूला है ये हमने यहाँ से फाइंड किया है, देख ले आप। तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप उससे y2 माइनस y1 को x2 माइनस x1 से डिवाइड कर ले, तो ये आपके पास इसी लाइन का स्लोप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप को फाइंड करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लाइन के ऊपर मिनिमम 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो फिर आप स्लोप उसी लाइन का फाइंड कर सकते हैं। अगर इंक्लिनेशन गिवन है तो फिर पॉइंट की जरूरत नहीं होगी, उन्हीं इंक्लिनेशन थीटा का आप ले लें टेंजेंट। ओके, तो ये तो आपके पास हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको आप देख लें यहाँ से, यहाँ देख लें, let L be a line which is not parallel to the x-axis or y-axis, and A and B are any 2 points. You see that A, this is a point on the line, and B is any point on the line. ये दोनों पॉइंट्स कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं लाइन L के ऊपर। तो फिर उसी लाइन L का जो स्लोप होगा वो आपके पास ये होगा,
उसी लाइन L का जो आपके पास स्लोप होगा, that slope will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये आप देख लें, ये आपके पास इसका स्लोप होगा। तो फार्मूला यूज करने के लिए 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर गिवन होने चाहिए। आपने अगर थीटा गिवन है तो m इक्वल टू टेंजेंट थीटा आपने यूज करना है। तो ये आपके पास था स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? 2 तरीकों से फाइंड करते हैं। एक हम इंक्लाइनेशन यूज करते हैं और दूसरा हम यूज करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर गिवन होते हैं। नाउ आपका अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस केस में यहां पे मैं अगर डायग्राम आपके लिए ड्रा भी कर लूं, ये देख लें, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रा किया हुआ है। ए लाइन में लेता हूं दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी दैट इज लेट्स से इसी तरह ये एक पैरेलल है एक्स एक्सिस को। अगर ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री होगा। अब टेंजेंट 0 का क्या होता है? वो 0 होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंक्लाइनेशन वाली डिफिनीशन यूज की, बिकॉज आई नो द एंगल। जब आपको एंगल का पता होता है तो स्लोप को फाइंड करने के लिए आपने यूज करना है टेंजेंट थीटा। यू विल टेक द टेंजेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन। अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो फिर उस केस में आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ डायरेक्ट द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इवन एक्स एक्सिस हैव्स एंगल 0 डिग्री आर 0 रेडियन। तो उस केस में आपके पास स्लोप 0 होगा। और y एक्सिस के केस में या अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, वहां पे आपके पास इंक्लाइनेशन 90 होता है या पाई बाय 2 रेडियन होता है। सो 90 या पाई बाय 2 जो हमारे पास है दैट इज अनडिफाइंड, बिकॉज वी नो दैट tangent theta is actually equal to sin theta divided by cos theta. So sin 0 sin 90 is 1 and cos 0 cos 90 is 0. So tangent pi by 2 is sin pi by 2 divided by cos pi by 2. So denominator में 0 आ रहा है, and you know division by 0 is not possible in mathematics, so that's why tangent pi by 2 is does not exist. So it means that the slope of a vertical line or the slope of a line which is parallel to y axis, or you consider y axis, इनका स्लोप हमारे पास क्या होगा? अनडिफाइन होगा। तो ये आसान 2-4 चीजें हैं। अगर 2 लाइंस आपके पास पैरेलल हो तो ये याद रख ले कि पैरेलल लाइंस हमारे पास हमेशा उनके जो थीटास होंगे, इंक्लाइनेशंस होंगे, वो इक्वल होंगे। तो अगर आपके पास पैरेलल लाइन की इंक्लाइनेशन सेम है, सो इट मींस दैट सेम थीटा का आप टेंजेंट ले लें तो यू विल गेट same slope because the tangent of the inclination is slope. So अगर आपके पास 2 लाइन पैरेलल है तो उस केस में जरूर थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होगा, मीन इंक्लाइनेशन सेम होंगे, और स्लोप टेंजेंट थीटा 1 equal to tangent theta 2. So it means that if 2 lines are parallel, if and only if their slopes are equal, तो पैरेलल लाइन के स्लोप हमेशा हमारे पास क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास लाइन परपेंडिकुलर है, ये आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां पे एंगल 90 बन रहा है, तो इस केस में स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। लेट m1 is the slope of the line L and m2 is the slope of the line L2। सो अगर दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर भी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। इफ एंड ओनली इफ, मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी समझाया था, इस इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में 2 चीजें होती है, एक डायरेक्ट पार्ट होता है, एक कन्वर्स पार्ट। तो डायरेक्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का ये है, if L1 is perpendicular to L2 then M1 multiplied by M2 will be equal to -1। और इसका कन्वर्स पार्ट होगा, अगर मीन F M1 M2 equal to -1 then L1 and L2 must be perpendicular to each other। तो if and only if जहां पे भी आता है उनकी 2 मतलब होती है। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उनका इक्वेशन y इक्वल टू a या y इक्वल टू -b होगा, क्योंकि जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है, ये बात याद रख लें, तो वहां पे आपके पास y की कोऑर्डिनेट लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर सेम होती है, यूनिक होती है। फॉर एग्जांपल आप यहां देख लें, आपके पास ये लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस। अगर मैं इस लाइन के ऊपर यहां कोई पॉइंट ले लूं, या इस लाइन के ऊपर यहां कोई पॉइंट ले लूं, या इस लाइन के ऊपर यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, तो इस पॉइंट्स के
ये प्लेन के पॉइंट्स है तो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तमाम में आपके पास ए के बराबर होगा. So that's why the equation of a line parallel to x-axis will be equal to y equal to a. क्योंकि इस लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट हर जगह पे a होगा. और सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन होगा y equal to minus b because the equation of this line is y equal to minus b. क्योंकि इस लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर y कोऑर्डिनेट आपका माइनस b होगा और x कोऑर्डिनेट चेंज होगा. तो दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन टू x-axis at a distance minus b from the x-axis, उसका इक्वेशन होगा y equal to minus b और x-axis का इक्वेशन होगा y equal to 0. क्योंकि x-axis के ऊपर अगर आप कहीं पे भी पॉइंट ले लें तो वो तो प्लेन का पॉइंट होगा और प्लेन के पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर होगा, मीन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. तो x-axis के ऊपर y कोऑर्डिनेट हर जगह पे 0 होगा. सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ द x-axis is 0 and the same explanation for the vertical line or the line which is parallel to y-axis or even y-axis. क्योंकि जो लाइन y-axis को पैरेलल होगा वहां पे आपके पास x की कोऑर्डिनेट जो होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो सेम होगी. तो दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये जो आप देख रहे हैं ये x इक्वल टू a होगा. क्योंकि इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट ले ले तो वो आपके पास उसका x कोऑर्डिनेट a होगा, y कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा बिकॉज दिस इज पॉइंट इन प्लेन और उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे लेकिन x कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर चेंज नहीं होगा. इस लाइन के ऊपर भी x कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं होगा, वो आपके पास हमेशा होगा माइनस बी अगर कोई भी पॉइंट आप इस लाइन के ऊपर ले ले. सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ दिस इज x इक्वल टू माइनस बी. और y एक्सिस के ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट ले ले, यहां ले ले आप y एक्स के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले ले तो वहां पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा. सो दैट्स व्हाई और y कोऑर्डिनेट आपके पास वेरी करेगा. सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. तो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है. आगे हम जाएंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस. अलोंग x एक्सिस, बात और से सुन लें, अलोंग x एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज i कैप, इसको गौर से सुन लें. एंड अलोंग द y एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज j कैप. दीज फॉर द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर हमेशा आपको डायरेक्शन शो करता है. आपने अब अगर x एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है तो x एक्सिस की इक्वेशन आपके पास क्या है, y इक्वल टू 0. यहां से आपको क्लियर कट पता है. तो अगर ये y इक्वल टू 0 है तो इसकी वेक्टर इक्वेशन में r डॉट j होगा क्योंकि अलोंग द y एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज j कैप. तो आपके पास x एक्सिस की इक्वेशन जो होगी ना, r इज एनी पोजीशन वेक्टर, आपके पास वो कोई भी पोजीशन वेक्टर हो सकता है, लेकिन x एक्सिस की वेक्टर इक्वेशन जो होगी वो r डॉट j होगी क्योंकि आपके पास x एक्सिस की इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें y का कोऑर्डिनेट 0 होता है. अब देख ले, ये x एक्सिस की इक्वेशन को देख ले, ये x एक्सिस है तो इस x एक्सिस में हर जगह पे y आपके पास 0 है. लेकिन अगर आप वेक्टर इक्वेशन की बात कर ले तो वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर्स में अलोंग द y एक्सिस आपका यूनिट वेक्टर होता है j कैप. सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस विल बी r डॉट j कैप क्योंकि ये y एक्सिस की तुम बात कर रहे हो और x एक्सिस की वेक्टर इक्वेशन आपके पास r डॉट i कैप होगी बिकॉज अलोंग द x एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज i कैप. तो ये आगे स्लाइड पे आपको ये चीजें मिल जाएगी. तो ये वेक्टर इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये रिमूव कर रहा हूं कि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ईटा कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन आर डॉट जे है क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपके पास क्या है, y इक्वल टू 0. तो y की जगह पे हमने r डॉट जे लिखा है क्योंकि आपके पास y एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं, तमाम x 0 होते हैं. तो ये x एक्सिस की इक्वेशन क्या होंगी, r डॉट जे, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वेक्टर इक्वेशन वो r डॉट i होगी क्योंकि अलोंग द y एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है. बात गौर से सुन ले. और x एक्सिस के ऊपर आपका यूनिट वेक्टर i कैप होता है.
वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 होती है और अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर आपका जे केप होता है. सो दैट्स व्हाई दीज आर दी वेक्टर इक्वेशन. इनके अलावा लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ने हैं. मीन लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशंस होती है, क्लासेस के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन है, ये आपने याद रखना है. ए बी सी आर द कोएफिशिएंट्स and sorry, a b are the coefficient, c is the constant, x and y is the variable. So this is the equation of a straight line. आपके पास जो straight line होता है इसी तरह ये इसकी equation है. This is the equation of straight line in standard form. तो ये standard form में इसकी equation है. ओके, नाउ हाउ यू कैन फाइंड द इंटरसेप्ट. ये आप यहां देख सकते हैं कि ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को, यहां देख लें, ये लाइन आप देख लें, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये गौर से आप देख सकते हैं. ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑन एक्स एक्सिस और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन ऑन द वाई एक्सिस. तो जिस पॉइंट को लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है और जिस पॉइंट पे लाइन आपके पास y को इंटरसेक्ट करे वो कहलाता है y इंटरसेप्ट. अब अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है तो इसका x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करोगे. x इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0. तो x इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए हम y 0 पुट करेंगे. सिमिलरली if you need to find out the y intercept, so y intercept is the point of the intersection of the line with the y axis और y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का क्या होता है, 0. तो y इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए हम x को 0 के बराबर लेंगे. तो अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए कि इसमें इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लो, तो इंटरसेप्ट्स को फाइंड करने के लिए आपने अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी. अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 के बराबर पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. और रीजन इसका ये है, यहाँ x इंटरसेप्ट के लिए y इसी वजह से 0 हम पुट करते हैं बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द x एक्सिस एंड ऑन द x एक्सिस the coordinate of every point, the y coordinate of the every point is 0. So ये इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए तरीका है कि x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 पुट करते हैं और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के बराबर पुट करते हैं. ओके, ऑनवर्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म. अगर ये एक लाइन है, इसमें आपके पास स्लोप गिवन है, मीन थीटा गिवन है, तो इस थीटा से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं. एम आपके पास गिवन हो, ये आप देख लें, स्लोप आपके पास गिवन हो, स्लोप एक लाइन में आपके पास स्लोप गिवन हो और उसका y इंटरसेप्ट गिवन हो, दिस c इज द y इंटरसेप्ट, ये आप देख लें. सो y इंटरसेप्ट तो असल में ये c क्या होगा, 0c होगा. दिस इज 0c, 0c बिकॉज दिस इज द y इंटरसेप्ट. तो अगर आपके पास y इंटरसेप्ट गिवन हो और उसी लाइन का स्लोप गिवन हो तो फिर उस केस में आपकी लाइन की इक्वेशन ये होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c. c इज द y इंटरसेप्ट, m इज द स्लोप. अगर आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो, ये पॉइंट x1 y1 ये पॉइंट गिवन है और इसके साथ साथ उसी लाइन का तुम्हें स्लोप मालूम हो, m मालूम हो, तो फिर उस लाइन की इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म में इसी तरह होगी. स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. फिर अगर आपके पास एक लाइन है और उसके ऊपर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट P और पॉइंट Q, ये दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर आपके पास गिवन है, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मीन this point is x unit away from the x axis, from the origin on x axis, और ये आपका पॉइंट जो है इसका y एक्सिस के ऊपर x2 y1 डिस्टेंस है. सिमिलरली ये पॉइंट क्यों है, इसका डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस इज x2 एंड अलोंग y एक्सिस इसका डिस्टेंस हमारे पास है y2. तो ये दो पॉइंट्स अगर लाइन के ऊपर गिवन हो तो फिर उस केस में जो लाइन की इक्वेशन होगी टू पॉइंट फॉर्म, मीन दो पॉइंट्स आपके पास लाइन के ऊपर गिवन है, तो वो आपके पास ये होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1. तो जब भी आपके पास अगर कोई कहे कि ये आपके पास स्लोप है, लेट्स से द स्लोप ऑफ अ लाइन इज 2, और फिर उसके साथ कहे कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट आपके पास है 0 माइनस 10, मीन c की वैल्यू है -10, और आपको कहे कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, सो आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है, सॉरी आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि तुम्हें इंटरसेप्ट
और स्लोप गिवन है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन ऑफ लाइन को उठाना है और उससे इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज करना है। अगर आपके पास स्लोप और एक पॉइंट गिवन है तो आपने फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करना है। तो ये तमाम इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए और जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उस गिवन इंफॉर्मेशन को देख के आप लोगों ने क्या करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि लाइन के इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ओके, डबल पॉइंट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इसको गौर से देख लें। ऑनवर्ड जो लाइन के फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, ये देख ले। थोड़ा सा मैं इसको जूम करवाता हूं। ओके, यहां देख लें, ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपका एक्स इंटरसेप्ट ऐसे होगा, ए जीरो ऑर्डर्ड फेयर, क्योंकि ये आपका पॉइंट ए जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ द प्लेन, और पॉइंट ऑफ प्लेन उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके ऑर्डर्ड फेयर होते हैं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो हम सिंपल ए लिखते हैं। और बी आपके पास क्या होगा, जीरो बी होगा, क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर तमाम एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं तो इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, आपका एक लाइन है और आपके पास दो इंटरसेप्ट गिवन हो, मीन बी आपका 1 है और ए आपके पास 2 है, मीन 2 0 और 0 1, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन को अगर आपने फाइंड करना है तो आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है। और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, ए और बी की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, ए इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज द वाई इंटरसेप्ट। तो अगर दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है, इंटरसेप्ट मीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उस केस में ये आपने यूज करना है। तो दिस इज द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस इज द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये आप लोगों ने फिर यूज करना है। आगे दो फॉर्म और हैं, ये देख लें, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर दोनों आपके पास इंटरसेप्ट गिवन हो, ए जीरो और जीरो बी, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन को देख ले, इसको गौर से देखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। गौर से बातों को सुन ले। ये आपका एल एक लाइन है, ये आप देख सकते हैं, एल मेरे पास एक लाइन है। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन आपको समझाता हूं। इस लाइन के ऊपर ए मैंने एक पॉइंट ले लिया, गौर से देखना है, ए आपका पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 का मतलब है कि दिस पॉइंट इज x1 यूनिट अवे ऑन द एक्सिस फ्रॉम द y एक्सिस एंड y1 यूनिट अवे फ्रॉम द x एक्सिस। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये थीटा और ये थीटा, ये भी x एक्सिस के साथ बन रहा है और ये भी x एक्सिस के साथ बन रहा है। अगर आप x एक्सिस को शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास दोनों सेम होंगे। और थीटा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आप एरो को देख सकते हैं, थीटा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, नाउ if you consider point P anywhere on this line, ये A तो आपने पहले से चूज किया है कि ये पॉइंट मेरा A होगा, लेकिन ये पॉइंट P जो है ये कहीं पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, ये आप यहां पे भी ले सकते हैं, ये आप कहीं पे भी लाइन के ऊपर ये पॉइंट आप ले सकते हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x और y। तो ये देखिए, ये आपका है x1, यहां से लेके यहां x1 होगा ना, और इसके कोऑर्डिनेट अगर x और y है तो फिर आपका यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक आपके पास x होगा। तो x से आप x1 को निकाल ले तो आपके पास ये डिस्टेंस आएगी, और ये आपके पास यहां से, ये देखें, यहां से आपके पास ये सारा, ये आपके पास ओरिजिन से, ये ओरिजिन से ये आपके पास y होगा, और यहां पे x आपके पास ओरिजिन से लेके m तक आपका x होगा। तो ये आपका है y माइनस y1। तो इस आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें से आप ले ले, और ये r देख लें, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम a टू p। ये r आपके पास जो है दिस इज a और p के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन ये p कहीं पे भी हो सकता है। तो cos थीटा आपके पास क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, so x minus x1 divided by r, r आपका हाइपोटेन्यूज है बिकॉज इट इज अपोजिट टू दी 90 डिग्री। जो वर्टेक्स 90 डिग्री एंगल बनाता है ये इसको अपोजिट है, सो दैट्स व्हाई दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो यहां से x आपके पास बराबर होगा x1 प्लस r cos थीटा। और सिमिलरली अगर इस थीटा का आप साइन ले लें
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो y आपके पास बराबर आएगा y1 प्लस r साइन थीटा। तो ये आप देख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस, ये इस लाइन के पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी इक्वेशन का आपने किसी ग्राफ का आपने इक्वेशन फाइंड करना है, तो ग्राफ के ऊपर असल में ग्राफ तो आपके पास पॉइंट से बनता है ना, और हर एक पॉइंट के लिए x और y की वैल्यू होती है। तो यहाँ हर एक पॉइंट पे x और y की वैल्यू चेंज होगी ना, थीटा को अगर आप चेंज करते तो x और y की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू दिस है और y, ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है लाइन के, ये भी आपने याद रखना है, बुक में नहीं है लेकिन ये पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आपने याद रखना है। थीटा इसमें इंक्लाइनेशन है और r आपके पास a और p के बीच में डिस्टेंस है, और x और y तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1 आपके पास कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट a के। अब देख लें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें अगर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें पार r, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लें, इसको आप सॉल्व कर लें r के लिए, तो r, इस इक्वेशन से r की वैल्यू निकालोगे तो वो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा होगा, और यहाँ इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू y1 y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा, तो दोनों r के बराबर होंगे। तो ये आपके पास सिमेट्रिक इक्वेशन है लाइन का, ये आपने याद रखना है, दिस इज द सिमेट्रिक इक्वेशन। और लास्ट हमारा जो है, लास्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो पहले आपको नॉर्मल की डिफिनीशन समझाता हूं कि व्हाट इज नॉर्मल। इसको देख लें, आपका ये एक लाइन है, अगर एक लाइन को आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें, ये देखिए दैट इज द लाइन, और ये आपका जो है ये एक लाइन सेगमेंट है। किसी भी पॉइंट से आप एक लाइन को एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें और वो लाइन सेगमेंट उसी गिवन लाइन को परपेंडिकुलर हो, सो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। आपका एक लाइन है, उस लाइन को आप किसी भी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ले, लाइन का एक हिस्सा ड्रा कर ले, बट दैट मेक्स 90 डिग्री विद द गिवन लाइन, सो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द गिवन लाइन। सो ये आपके पास नॉर्मल की डिफिनीशन है। यहां देखिए आप, हमने लिखना भी है, अ नॉर्मल इज अ लाइन, a normal to a line is a line segment drawn from a point perpendicular to the given line। ओके, सो ये आपके पास एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन लिया है, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये ब्लू में, और इस लाइन को मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया है ओरिजिन से, क्योंकि यहां पे आपने पढ़ा ना कि नॉर्मल एक लाइन सेगमेंट होता है, और किसी भी लाइन को वो परपेंडिकुलर होगा तो वो लाइन सेगमेंट पर कहलाता है नॉर्मल टू दैट लाइन। तो ये मैंने एक लाइन लिया है, ये ग्रीन में आप देख सकते हैं, और इस लाइन को मैंने नॉर्मल ओरिजिन से पॉइंट एन तक, ये जो आप लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल बिकॉज इट मेक 90 डिग्री विद द गिवन लाइन, मीन ये लाइन सेगमेंट आपके गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन सेगमेंट गिवन लाइन को परपेंडिकुलर होता है वो कहलाता है नॉर्मल। ओके, तो इस केस में ये लाइन जो गिवन है, ये देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका n यूनिट है, सो इट मींस दैट आपका जो y इंटरसेप्ट है वो n के बराबर होगा, और आपका x इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस m है ना, तो x की वैल्यू m होगी पॉइंट a के ऊपर, तो आपका x इंटरसेप्ट m के बराबर है। तो ये देखिए, ये y इंटरसेप्ट को थोड़ा सा देख लें, ये पॉइंट b असल में y इंटरसेप्ट है, लेकिन ओरिजिन से लेके पॉइंट b तक आपका डिस्टेंस n हो गया, तो ये पॉइंट आपका 0n है। तो अगर 0n है, सो इट मींस दैट दैट इज योर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट n है और x इंटरसेप्ट आपके पास m है, और ये OP जो है ये स्मॉल p के बराबर है। दिस इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि ON तो हमारे पास नॉर्मल है ना, बिकॉज दिस इज अ line segment perpendicular to the given line, तो according to definition of normal, so it is normal to the given line। तो ये ON जो है ये उसी नॉर्मल की लेंथ है जिसको हमने स्मॉल p से डिनोट किया है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो आप यहां देख, cos थीटा बराबर होगा p डिवाइड बाय m के, p डिवाइड बाय m के। तो यहाँ पे m हमारे पास बराबर होगा p डिवाइड बाय cos थीटा के, और 1 बाय cos थीटा secant थीटा के बराबर होता है। तो आपका x इंटरसेप्ट p secant थीटा के बराबर होगा, और सिमिलरली आपका जो y इंटरसेप्ट n है वो p cos थीटा के बराबर होगा। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों लाइंस
एक्स इंटरसेप्ट आपका एम है और वाई इंटरसेप्ट आपका एन है, तो इट मींस दैट के दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है। अगर दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन के मुताबिक इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। तो a की जगह पे m है बिकॉज दिस इज द x इंटरसेप्ट, और b की जगह पे n है, दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो दिस इज द डबल पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो m की जगह पे p सीकन थीटा, क्योंकि आपका m जो है ना वो p सीकन थीटा के बराबर है, और आपका n जो है वो p कोसिकन थीटा के बराबर है। तो 1 बाय सीकन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, 1 बाय कोसिकन थीटा साइन थीटा के बराबर, और इस p को आप उस साइड पे शिफ्ट कर लें तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन होगा, लेकिन इसमें ये जो स्मॉल p है ये आपके पास उस नॉर्मल की लेंथ होगी, और थीटा आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। सही है। सो ये देख ले, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन of the given line making an angle theta with the positive x-axis and perpendicular distance from the origin to p। ये p जो है ना ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखिए ये आपका p है, यहां से यहां तक आपका p है, और ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है। सो ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन है, ये आपने याद रखना है। तो अब आगे एग्जाम्पल को देख लें, इसके ऊपर एग्जाम्पल जो एक्सेलरेटेड कोर्स में है। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू 3 यूनिट है और थीटा आपका 120 डिग्री है, और आपने फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग। ये अब देखिए इस ये एक्सेलरेटेड कोर्स के अंदर ये एग्जांपल शामिल है। इसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 एक्सक्लूडेड हैं, वो इंक्लूड नहीं है, और क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 9 तक इंक्लूड है। सारे आपके पास लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कुछ चीजें गिवन होंगी आपके पास, ये सारे इक्वेशन यहां हमने डिस्कस कर दिए, ये आप देख सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, आपके पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है, और नॉर्मल फॉर्म है। तो ये सारे आपके पास इन क्वेश्चंस में 1 बाय 1 यूज होंगे। तो काइंडली